Hello, children. I am here today to do a very important lesson of our Beehive book. And the name of the lesson, as you can see on this first slide, is The Sound of Music. Dear friends, this lesson is divided into two parts, and in these two parts, we will see, we will learn, and we will study about two great musicians of their own field. First, in the first part, we will see Evelyn Glennie, and the second part, we will see Bharat Ratna Bismillah Khan, and the name of the lesson is The Shehnai of Bismillah Khan. Now, in this part particularly, we will see the life history. We will see the account of the life of Evelyn Glennie, and we will also see how she has achieved uh, this mastery of over so many instruments, though she is completely deaf. So, part 1 is Evelyn Glennie listens to music without hearing it. So, by the title itself, you will get confused how one can hear music, how one can listens music without hearing it. But it has made possible by Evelyn Glennie, and let us see his life story through this lesson, through this wonderful lesson, Evelyn Glennie. So, before hitting the lesson, I would like to share before you, my dear friends, that the life of Evelyn Glennie is not just the inspiration to the deaf children or the handicapped, but also her life is an ultimate inspiration to the persons, to the people like you and me, who can see, who can hear, and who can talk very easily. So, this is the picture of Evelyn Glennie, rather a portrait, and the name of the lesson is Sound of Music. This is also one of the picture, you can see it in slide. So the Sound of Music divides into two parts. Each part focuses on two musicians, Evelyn Glennie and Bismillah Khan. Part 1 throws light on Evelyn's life and struggles to become a successful musician. Students will learn that she is a multi-percussionist and has the talent to play hundreds of instruments perfectly. It tells you how she gained international recognition. This is a very inspirational story, dear friends, and we will start it. So, part 1, Evelyn Glennie is a multi-percussionist. She can play about 1000 instruments with perfection. She listens to sound without hearing it. Evelyn fought against a physical disability and became a source of inspiration for thousands of disabled persons. She was profoundly deaf. She was 11 years old when it was discovered that she had the hearing disability. Now she wanted to pursue her career in music, but most of her teachers discouraged her. But it was Ron Forbes who recognized her, spotted her potential, and supported her in achieving her goal. Okay, now we will straight read the lesson. I shall read the first para first, then I shall explain it to you word by word in our mother tongue also, in Hindi also. Okay. So before you read, this is the statement by James Blade about Evelyn Glennie. What does he say? He says that
God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. This is the statement by James Blades about Evelyn Glennie, that God may have taken her hearing ability, but He has given her back something extraordinary, and that is why even today she plays music so nicely that she can delight many people in the world. Now read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. Okay. So rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most, and that challenge was she was profoundly deaf. तो दोस्तों, ये कहानी है एवलिन ग्लेनी की। बड़ी इंस्पिरेशनल सी ये कहानी है हमारे लिए। एक डेफ लड़की, तो शुरुआत होती है इस स्टोरी की, शुरुआत होती है इस उनके लाइफ के अकाउंट की यहाँ से। रश आवर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। एक दुबली पतली सी लड़की है और एक वो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। ओके। और लोग बड़े पुश कर रहे हैं एक दूसरे को, रफली एक दूसरे को जो है धक्के दे रहे हैं, और भीड़ भाड़ वाला टाइम है, सुबह का टाइम है। रश आवर मतलब भीड़ भाड़ वाला समय। तो भीड़ भाड़ वाला समय नॉर्मली कब रहता है? सुबह का समय। और स्लाइड गर्ल, एकदम दुबली पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। वो 17 साल की है, लेकिन अपने 17 साल से वो यंग दिख रही है, क्योंकि बड़ी दुबली पतली सी नाजुक सी लड़की है वो। She was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. वो vibrations को फील कर रही है। अप्रोचिंग ट्रेन यानी अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे मेट्रो ट्रेन होती है ना, तो मेट्रो ट्रेन सामने से आ रही है और वो वाइब्रेशंस को क्या कर रही है? फील कर रही है। और वो क्या है? वो बड़ी नर्वस है और एक्साइटेड भी है। क्यों नर्वस और एक्साइटेड है वो? आप समझ सकते हैं, नर्वस भी है और एक्साइटेड भी। क्यों? बिकॉज इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। उसका जो है आज वो है, आज जो है उसका ऑडिशन है। कहाँ पर? पहला दिन है आज, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। कौन सी म्यूजिक एकेडमी की बात हो रही है यहाँ पे? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक विच इज इन लंडन। वो कहाँ है? लंदन में है। ठीक। और ये बहुत ही जानी मानी इंस्टीट्यूशन है एक, और बहुत सारे यहाँ पर जो है जो म्यूजिशियंस होते हैं, यहाँ पे एक परीक्षा देनी होती है और वहाँ पर बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और बड़ी कठिन परीक्षा। तो एवलिन ग्लेनी ने भी उस परीक्षा को दिया है। ओके, अब देखिए। Now, it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting means frightening enough, frightening, डर लग रहा है उसको, for any teenager fresh from a Scottish farm। कहाँ से आई? एक स्कॉटलैंड के छोटे से कस्बे को बिलोंग करती है, छोटे से गांव को बिलोंग करती है, और वहाँ से आने वाली लड़की है। और एकदम से उसका कहाँ शो होने वाला है? कहाँ पे उसको ट्रेनिंग होने वाला है? उसका ट्रेनिंग होने वाला है प्रेस्टिजियस, बहुत ही प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज। तो नॉर्मल लड़कों के लिए तो ये फ्राइटनिंग, एक्साइटमेंट भी ठीक होता है, लेकिन
इस बच्ची के लिए, एवलिन ग्लेनी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। कौन सा चैलेंज? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के सीढ़ियों पर चढ़ना, ये उससे भी बड़ा चैलेंज उसके लिए था, बाकी लोगों से बड़ा चैलेंज था। क्यों चैलेंज था? बिगर देन मोस्ट, बिकॉज सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। वो कंप्लीटली क्या थी? दूसरों से एकदम डेफ थी, वो सुन नहीं सकती। लेकिन उसने करियर किस में चूज किया है? उसने करियर चूज किया है म्यूजिक में। और म्यूजिक क्या है? म्यूजिक इज टोटली रिलेटेड टू हियरिंग एंड लिसनिंग। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे वो इतनी बड़ी इतनी श्रेष्ठतम कलाकार बनी। नाउ जॉस्टल मीनिंग पुश रफली, स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थीन, एंड डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग। दीज आर द वर्ड मीनिंग। टीनेजर मीन अ पर्सन हु इज इन हिज टीन्स। एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स अ पर्सन हु वांट्स टू बी ए म्यूजिशियन। एंड प्रोफाउंडली डेफ का मतलब होता है कंप्लीटली डेफ। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, ये पूरा इसका इसी का जो मैंने आपको समझाया उसी का एक्सप्लेनेशन है आगे। सो एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी का जो लॉस ऑफ हियरिंग था वो ग्रेजुअल था, वो धीरे धीरे हुआ, एकदम से वो बचपन से वो डेफ नहीं थी। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी मदर ने देखा एक दिन अचानक से, ऐसे कोई 8 साल की थी एवलिन, और उसकी मदर ने उसको आवाज़ लगाया। तो वो पियानो बजा रही थी। कौन? एवलिन क्या कर रही थी? पियानो बजा रही थी, और उस समय मदर ने आवाज़ लगाई। They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard. सेज इजाबेल ग्लेनी। इजाबेल ग्लेनी कौन है? उसकी मदर है। उसके मदर ने कहा कि हमने उसका नाम पुकारा और वो बिल्कुल भी हिली नहीं अपनी जगह से, मतलब उसने सुना नहीं। ओके, सॉरी, हमने उसका नाम पुकारा और वो अपनी जगह से हिली भी नहीं। कौन? एवलिन। तो उसकी मदर के तुरंत समझ में आया, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। मेरे तुरंत समझ में आया कि उसने हमारी आवाज को नहीं सुना। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस। कंसील का मतलब होता है छिपाना, टू हाइड। कुछ समय तक तो एवलिन ने इस बात को छिपाए रखा, हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड। लेकिन जब वो लगभग 11 साल की हुई, 1-2 साल के बाद मान लीजिए, उसके मार्क्स क्या होने लगे? डिटेरियोरेट होने लगे, मतलब लेसन कम होने लगे। क्या होने लगे? कम होने लगे मार्क्स। ओके, फिर क्या हुआ? एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स। अर्ज्ड मीन्स रिक्वेस्टेड। अर्ज्ड का मतलब होता है, ए और मीनिंग लिखे हैं मैंने लास्ट में। अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। तो मैडम ने कहा, उसके हेडमिस्ट्रेस ने, कि आप इसको कहाँ ले जाइए? स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। देखिए स्पेशलिस्ट कौन होता है? स्पेशलिस्ट इज ए डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी। तो उसको कहाँ ले जाएंगे? कान के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, है ना? ENT वाले होते हैं ना, ओके, ईयर नोज और थ्रोट वाले डॉक्टर होते हैं। ओके, डिटोरेट का मतलब रिड्यूस होना, कम होना, और यानी रिक्वेस्टेड। जैसा मैंने आपको बताया, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इसके वर्ड के मीनिंग हर आपको इस स्लाइड में मिल जाएंगे। हाँ, फिर क्या हुआ? इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट, जब स्पेशलिस्ट के पास हो गए, इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड का मतलब होता है, देखिए यहां पे लिखा है वीकंड, डैमेज्ड। इम्पेयर्ड का मतलब डैमेज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। उसका ग्रेजुअल नर्वस सिस्टम, उसकी नर्वस सिस्टम क्या हो गई है? वो डैमेज्ड हो गई है, धीरे धीरे डैमेज हो गई है, और अब वो सुन नहीं पाएगी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। और उसको बताया गया कि कुछ दिन तक और ये थोड़ा सा सुन पाएगी, तो उसको आप क्या करिए, कुछ
हेयरिंग एड्स वगैरह लगा दीजिए, समझते हैं ना, कान में लगाने की मशीन वगैरह होती है, उसको बोलते हैं हेयरिंग एड्स, एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ। और ये भी उसको, उसके पेरेंट्स को बताया गया डॉक्टर द्वारा कि उसको जो है आप नॉर्मल स्कूल में मत रखिए, उसको जो है कहाँ रखिए, वो स्पेशल स्कूल्स होते हैं ना डेफ बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए, वहां पर उसको भेजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन ने कहा अचानक से सब कुछ अंधकारमय हो गया। आप एक इमेजिन करिए, 11 साल की लड़की है जिसका सब कुछ ठीक चल रहा है, अपने इंटरेस्ट को वो जो है परस्यू कर रही है, पढ़ाई अपनी कर रही है, और अचानक से उसको पता चलेगा कि अब वो सुन नहीं सकती जीवन भर, तो क्या हो जाएगा? एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। अचानक से सब कुछ जैसे खत्म हो गया, एकदम से जीवन में अंधेरा छा गया। लेकिन ओके, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप यानी छोड़ देना। लेकिन एवलिन उन बच्चों में से नहीं थी कि सब कुछ जो है वो हार मान जाती। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसको म्यूजिक में पहले से इंटरेस्ट था, आपने देखा ना, वो पियानो बजा रही थी। तो उसने डिसाइड किया कि मैं सुन सकती हूँ या नहीं सुन सकती हूँ, लेकिन मेरा जो म्यूजिक का इंटरेस्ट है उसको मैं जरूर परस्यू करूंगी, उसको मैं जरूर फॉलो करूंगी आगे भी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने देखा एक लड़की xylophone बजा रही थी। ये देखिए xylophone यहाँ पर भी दिया है। और ये xylophone क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ ए रो ऑफ वुडन बास ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। ठीक है, यहाँ पे चित्र भी शायद है। हाँ, ये दिस इज xylophone। वुडन बार्स होते हैं। यहाँ पे एक चित्र और है, ये एवलिन ग्लिनी, सी इज एवलिन ग्लिनी। हाँ, सी इज प्लेइंग द xylophone हियर। ओके, तो उसने देखा कि एक लड़की xylophone बजा रही है और उसने भी कहा कि मुझे भी इसको बजाना है। फिर मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। मोस्ट ऑफ द टीचर्स उसके जो थे सबने उसको डिस्करेज किया, अरे तुम सुन नहीं सकती, तुम कहाँ से xylophone बजाओगी। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, लेकिन उसके एक टीचर थे रॉन फोर्ब्स, म्यूजिक के टीचर, क्या नाम है उनका? रॉन फोर्ब्स था। परक्यूशनिस्ट थे वो। परक्यूशनिस्ट ने अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम और द तबला, उनको परक्यूशनिस्ट बोला जाता है जो तबला बजाते हैं, है ना, वो तबला मास्टर होते हैं या ड्रम के मास्टर होते हैं। नाउ उसने उसके पोटेंशियल को पहचाना, तो रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, ही बिगैन, तो उन्होंने उसकी प्रैक्टिस कैसे शुरू की? ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने दो अलग अलग नोट्स के, नोट्स समझते हैं ना, नोट्स, वो देखिए आप बैंड में ऐसी चाबी भरते हैं, ऐसी चाबी, तो उसको बोलते हैं नोट्स। एक लोअर नोट वाला लिया और एक हायर नोट वाला ड्रम लिया, दो ड्रम लिए उन्होंने। ठीक है, ओके। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और कहा, रॉन फोर्ब्स ने कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से। उन्होंने कहा अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो। अब आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो अभी आप देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उन्होंने कहा कि देखो ये भी एक टीचर है, बाकी टीचर्स ने क्या किया, उसको डिस्करेज किया। ठीक है, लेकिन ये इन टीचर्स इन्होंने देखा कि बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है इस लड़की के अंदर, और उन्होंने डिसाइड किया कि इसको वो सिखाएंगे। उसने कहा ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तुम सुनो मत, किसी अदर वे से जो है उसको तुम सुनने की कोशिश करो। एंड सेज एवलिन, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise. तो उसने तुरंत देखा कि वो जो है कुछ, वो ड्रम जो हायर नोट वाला ड्रम है वो वेस्ट के, उसके कमर के ऊपर के भाग में जो है उसको, उसकी टिंकलिंग हो रही है, उसको सुनाई दे रहा है। उसको सुनाई दे रहा है मतलब उसको वाइब्रेशंस उसके फील हो रहे हैं,
और वेस्ट के जो नीचे का पैर वाला पार्ट है, पैर वाले पार्ट में उसको लोअर ड्रम का नोट जो है वो टिंकल हो रहा है, उसके वाइब्रेशन सुनाई दे रहे हैं। और फोर्ब्स ने क्या किया, रॉन फोर्ब्स ने उस एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सुन एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। देखिए क्या हुआ, तुरंत एवलिन के समझ में आया कि अलग अलग तरीके के नोट्स, अलग अलग तरीके की धुन, अलग अलग तरीके की ट्यूनिंग जो है उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है वो जो है वाइब्रेट हो रही है, उसको सुनाई दे रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। कान से वो सुन नहीं सकती है, तो उसने अपने पूरे शरीर को काम में लगा दिया, पूरे बॉडी के पार्ट्स को काम में लगा दिया। वो सारे के सारे पार्ट्स जो है उसके बॉडी के पार्ट्स वो सेंस करने लगे। क्या सेंस करने लगे? नोट्स को सेंस करने लगे, वो सुर ताल को जो है सेंस करने लगे। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब क्या बाकी था? सिर्फ अब उसको समझ में तो आ रहा था किस तरीके से म्यूजिक उसको सीखना है, अब सिर्फ बाकी था डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क। तो जाहिर सी बात है, जो लोग सुन सकते हैं आसानी से वो सिर्फ ईयर से काम लेंगे अपने, और जो सुन नहीं सकते, मतलब जो एवलिन देनी है उसने कान के अलावा जो है सब तरीके से जो है उसने म्यूजिक को सुनने की कोशिश की। तो आपको ये ज़रूर सवाल दोस्तों आया होगा कि क्योंकि हम बहुत बड़ी सोच कभी भी, मतलब बहुत सारे लोग रखते हैं, डाउट्स हमारे मन में तुरंत आ जाते हैं कि कैसे उसने किया होगा। तो आपको मैं एक सिंपल सा 1 मिनट का एग्जांपल बताता हूं। अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपको कहा जाए कि कोई सामने से आ रहा है, उसको आपको पहचानना है, समझना है, जो भी करना है, तो आप क्या करेंगे? जब सामने वाला कोई आ रहा है तो आपके आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? आप जो है उसको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी अभी, तो वो क्या कर रही थी? वो वाइब्रेशंस को सुन रही थी, क्योंकि वो वाइब्रेशंस को जो फील कर रही थी वो, क्योंकि वो सुन नहीं पाती या देख रही होगी। तो आपके आंखों पे ऊपर अगर पट्टी बांध दी जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसको देखने की कोशिश नहीं करेंगे, आप किसी और तरीके से उसके आगमन की सूचना जो है आपका माइंड किसी और तरीके से आपको देगा। कैसे? उसके फीलिंग आएगी, उसका स्मेल आएगा, या उसके वाइब्रेशंस होंगे, या आप सुनेंगे, उसकी आवाज़ को सुनेंगे किसी और तरीके से। तो जब हमारा एक आध अंग जो है काम करना बंद कर देता है, तो आपने ये भी सुना होगा सिक्स सेंस हमारा काम करने लगता है। वो सिक्स सेंस दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता है, वो गॉड ने जो है कोई अलग चीज़ हमारे अंदर दी हुई नहीं होती है। क्योंकि एक सेंस हमारा काम करना बंद कर देता है तो ऑब्वियसली हम दूसरे किसी सेंस से जो है उसको सुनने की कोशिश करते हैं। ओके, समझ रहे ना? जब आपको सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, मान लीजिए किसी को जो सुनाई नहीं देता है, तो सामने वाले के लिप के मोमेंट की तरफ वो देखेगा और उस की बातों को सुनने की कोशिश करेगा। फिर क्या हुआ आगे? सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। उसके बाद से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसने जो है यूनाइटेड किंगडम में अपना टूर किया एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा समझते हैं? ऑर्केस्ट्रा इज ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस एंड सिंगल। दो टाइप के परफॉर्मेंसेस होते हैं। एक ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस होता है, ऑर्केस्ट्रल मतलब ग्रुप परफॉर्मेंस होता है, और एक परफॉर्मेंस होता है सोलो परफॉर्मेंस। कौन सा? सोलो। तो ऑर्केस्ट्रल वर्क में शुरुआत में इसने काम किया, फिर धीरे धीरे वहां से वो बाहर निकल गई। सी हैड डिसाइडेड टू मेक हर लाइफ व्हेन शी वाज 16। जब वो 16 साल की हुई, उसने म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाने का डिसाइड किया। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने ऑडिशन दिया। सबसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ये संस्था है जहाँ पर बच्चों को म्यूजिक सिखाया जाता है। ऑडिशन दिया उसका, समझते हैं ना? ऑडिशन, डांस का ऑडिशन देते हैं, परीक्षा होती है। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और एकेडमी के इतिहास में इस डेफ लड़की ने हाईएस्ट मार्क्स अर्जित किए। कैन यू इमेजिन?
So this is the quality of Evelyn Gilney. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the awards. तो 3 ईयर का कोर्स के लिए वो ऑडिशन उसने दिया था, फिर 3 इयर्स के कोर्स के लिए उसका वहाँ पर सिलेक्शन हुआ. Then after 3 years course, she had brilliantly passed out from that 3-year course, और उसने जो है बहुत सारे अवार्ड्स भी वहाँ पर जीते. हम एक ये कुछ वर्ड की मीनिंग है, देख लेना. ये रॉन फोर्ब्स की तस्वीर है, उसके टीचर. फिर देखिए रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक का चित्र भी मैंने, ये थोड़ा सा उसके बारे में है. द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन इंग्लैंड इज़ द ओल्डेस्ट कंजर्वेटोयर इन द यूके, फाउंडेड इन 1822. 1822 की संस्था है वो, ठीक है. द एकेडमी प्रोवाइड्स अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग अक्रॉस इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस. ये थोड़ा पढ़ लेना आप, इसकी बिल्डिंग का चित्र भी है. दिस इज रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. ओके, तो ये आपके लिए हमने स्लाइड बनाए हैं स्पेशल. तो हम आगे बढ़ते हैं. अभी यहाँ तक समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा. हम आगे बढ़ते हैं. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. तो इतना सब होने के बावजूद वो इतनी टॉप की कलाकार है, इतनी टॉप की आर्टिस्ट है, एक एक्सलेंट म्यूजिशियन है, एक्सक्विजिट मान लीजिए वो सिंगर है, मल्टी परक्यूशनिस्ट है, लेकिन इन सारी चीज़ों में से किसी को भी वो अपना हीरोइक अचीवमेंट नहीं मानती. मतलब अपने आप को हीरो नहीं समझती. वो क्या बोलती है एवलिन ग्लिनी? और आप देखिए कोई भी बड़ा आदमी जो होता है उसके अंदर सादगी जरूर होती है, उसके अंदर अहंकार जो है उनको छू भी नहीं सकता है. तो वही बात एवलिन ग्लिनी के जीवन में हमें जो है सीखने को मिलती है ना. जो फलदार पेड़ होते हैं हमेशा झुककर रहते हैं, वैसी ये बात है. वो कहती है कि इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. वो कहती है कि अगर आप जीवन में हार्डवर्क करते हैं और आपको पता होता है कि आपका एम क्या है, आप वहां जरूर पहुंचेंगे. ओके. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट. मल्टी यानी बहुत सारे, परक्यूशनिस्ट यानी बहुत सारे प्रकार के वाद्य वो बजा लेती है. कौन से वाद्य? ड्रम से रिलेटेड, तबला से रिलेटेड, परक्यूशन से रिलेटेड वाद्य वो बजा सकती है. विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, 1000 इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा सकती है. आप समझ रहे हैं? एंड ए हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. और आपको लगता होगा कि इसके परफॉर्मेंसेस कहाँ कहाँ होते होंगे या नहीं होते होंगे. तो मैं आपको बता दूं, उसका बड़ा हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल है. पूरी दुनिया भर में उसके परफॉर्मेंसेस होते हैं और लोगों को डिलाइट करती है. हेक्टिक का मतलब होता है बिजी. उसके पूरे कार्यक्रम पूरे साल भर के कार्यक्रम फिक्स होते हैं. उसकी डेट्स जो है वो नहीं मिलती है. और ये एक अकेली ऐसी लड़की है पूरी दुनिया भर में जो 1000 इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर उसकी मास्टरी है. शी कैन प्ले more than 1000 instruments. Now it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly. बोलता है राइटर, बोलते हैं देवराव कावले, ये जो राइटर है वो बोलते हैं कि इट इज़ वेरी मच इंट्रिगिंग. बड़ा चमत्कारिक होता है, बड़ा फैसिनेटिंग होता है, बड़ा क्यूरियस होता है, बड़ा आकर्षित करने वाला होता है जब भी आप एवलिन को देखते हैं. वो डेफ होने के बावजूद भी जो है बड़ा एफर्टलेसली जो है वो बोलती है. इन आवर 2 hour डिस्कशंस नेवर मिस्ड ए वर्ड. इंटरव्यूअर जो है, इन्होंने उसका इंटरव्यू लिया, वो बोलते हैं कि मैंने उसका 2 घंटे तक इंटरव्यू लिया और उसने मेरा एक भी वर्ड को मिस नहीं किया. हर वर्ड का उसने जवाब दिया. फिर बाद में आगे एवलिन बोलती है कि मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल. बोलते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, बुशी बियर्ड्स जिनकी होती है, उनसे थोड़ा सा मुझे परेशानी होती है उनकी बातें समझने में. लेकिन नॉर्मली मैं
सारी बातें समझ जाती हूँ, जो भी मेरे से बात करता है। सी लाफ्ड। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। बोलती है कि जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो मुझे सुनाई तो देता नहीं है, इसलिए मुझे उसके लिप के मोमेंट को देखना पड़ता है। और इतना ही नहीं, पूरे होल फेस को देखना पड़ता है, स्पेशली द आईज, और आंखों को भी देखना पड़ता है कि किस एक्सप्रेशंस क्या है। तो उसी तरीके से मुझे फिर उसको जवाब देना होता है। माई स्पीच इज क्लियर, सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट। देखिए, लिल्ट का मतलब होता है उच्चारण, लिल्ट यानी उच्चारण। स्कॉटलैंड की है वो, तो ऑब्वियसली वो स्कॉटिश भाषा में बात करेगी। इंग्लिश फोक भाषा है, वहाँ की भाषा में बात करती है। वो बोलती है कि माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। बोलती है मेरा स्पीच इसलिए क्लियर है, आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं 11 साल तक आसानी से सुन सकती थी, तो इसलिए जो है मैं बोल सकती हूँ अच्छे से। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। और एक क्वालिटी एवलिन ग्लिनी की हमको देखने को मिलती है कि न सिर्फ स्कॉटिश लैंग्वेज, न सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, बल्कि उसको मास्टरी है, फ्रेंच लैंग्वेज भी बोल लेती है वो, और सी हैज़ ए मास्टरी ऑन बेसिक जापानीज, और बेसिक जापानीज लैंग्वेज भी बोल लेती है। ये बड़ी अद्भुत बात है। 11 साल की उम्र में जिस बच्ची का हेयरिंग का सेंस खत्म हो गया, दैट गर्ल कैन ईजीली स्पीक, दैट गर्ल कैन ईजीली टॉक इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये भी बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि किस तरीके से उसने सारी भाषाओं को सीखा होगा। आगे ये वर्ड के मीनिंग्स देख लेना, है ना। ये अभी वर्ड हमने देखा था लिल्ट, है ना, लिल्ट अ वे ऑफ स्पीकिंग। ओके, पूरा देख लेना है, हाँ, वर्ड के मीनिंग मिस नहीं करना है। फिर एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। अब तक तो पता चल गया होगा, वाइब्रेशंस के माध्यम से वो म्यूजिक को सीखती है। तो बोलती है कि म्यूजिक मेरे हर बॉडी के पार्ट में है, सिर्फ मैं सुनती नहीं हूँ म्यूजिक को। इट टिंगल्स इन द स्किन। समझ रहे हैं? देखिए, टिंगल का मतलब होता है, यहां पे दिया है, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई एयर। मेरे बालों में, मेरे गालों में, और जो है मेरे बॉडी के हर एक पार्ट्स में जो है म्यूजिक जो है उसने घर कर रखा है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती है तो वो अपने फिंगर टिप्स के सहारे जो है म्यूजिक को जो है पेश करने की कोशिश करती है और महसूस करने की कोशिश करती है। By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. Resonances का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे दिया है, साउंड्स। रिजोनेंसेस का मतलब होता है साउंड, इकोज, रिपीटेशन ऑफ साउंड। इको समझते हैं ना, रिपीटेशन ऑफ साउंड। तो लीन हो जाती है, झुक जाती है। लीन का मतलब होता है झुकना, LEAN, लीन। तो वो ड्रम्स के ऊपर पूरा झुक जाती है, अपने बॉडी पूरी झुका लेती है ड्रम्स के ऊपर, और वो जो है उसके रिजोनेंसेस को फील करती है अपने बॉडी में, साउंड को फील करती है अपने बॉडी में। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, हाँ, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, एवलिन म्यूजिक को कैसे हियर करती है, तो ये उसका आंसर है, पूरा ये पैराग्राफ उसका आंसर है। ओके, तो वो क्या करती है, वो झुक जाती है। कहाँ झुक जाती है? ड्रम्स के ऊपर झुक जाती है और रिजोनेंसेस को फील करती है अपने ऊपर। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज एंड so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. तो उस रिमूव शूज इसलिए रिमूव करती है, बेयर फीट इसलिए वो हो जाती है क्योंकि उसके बेयर फीट में जो है वो पैर के ऊपर जो है वुडन प्लेटफॉर्म से होने वाले जो वाइब्रेशंस है उससे उसको जो है वो रेजोनेंसेस का पता चलता है, और वो बहुत अच्छे से जो म्यूजिक को बजाती है, म्यूजिक को प्ले करती है। सो बड़ा ही अद्भुत है हमारे लिए, तो मेरे लिए तो बड़ा ही अद्भुत है ये। मैं तो ये लेसन जो है अभी आज जो है ऐसा मान के चलिए 30
32वीं बार पढ़ा रहा हूँ. ओके, बट स्टिल I feel extremely surprised and extremely shuddered. You see how she would managed, how Evelyn Glennie would manage to learn her music. So ये पूरा देख लेना. ये देखिए, xylophone. She is playing the xylophone. नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. तो कोई इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है. एवलिन अपने ऑडियंस को क्या करती है, बड़ी डिलाइट करती है, बड़ी हैप्पी रखती है. मतलब लोग जो है उसके म्यूजिक से बड़े खुश होते हैं. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. कौन सा अवार्ड उसको मिला? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उसको मिला 1991 में. सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स अबाउट हर. ये जो शुरुआत में हमने लाइन पढ़ी, जेम्स ब्लेड्स उसके बारे में बोलते हैं, ये मास्टर परक्यूशनिस्ट है, वो बोलते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. भगवान ने उससे सुनने की क्षमता तो छीन ली है, लेकिन कुछ उसको जो है वापस किया है. और इसी वजह से व्हाट वी हियर शी फील्स far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. सिर्फ सुनने वाले जो है वो भी म्यूजिक करते हैं, लेकिन हमारे जहन में उनकी बातें, उनके गाने ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं. और एवलिन ग्लेनी का म्यूजिक, क्योंकि वो उस म्यूजिक को क्या करती है, फील करती है, सेंस करती है, इसलिए ये एक यूनिवर्सल म्यूजिक, एक एवरलास्टिंग म्यूजिक जो है वो हमारे सामने रखती है. एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक. देखिए, एवलिन मानती है कि वो एक वर्कहोलिक टाइप की लड़की है. वर्कहोलिक यानी सदैव काम में बिजी रहना, उसको बोलते हैं वर्कहोलिक. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, बोलती है बस मुझे काम करना पसंद है. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस. उसका क्षेत्र ऐसा है, कंटिन्यूसली उसको रियाज करना पड़ेगा. इसके लिए तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इसके सामने, लेकिन उन चैलेंजेस को उसने अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से क्या किया है, हल्का किया है, कम किया है. बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस. लेकिन वो बोलती है जो रिवार्ड्स मुझे अपने जीवन में मिले हैं वो बहुत ज़्यादा है, मैं बड़ी खुश हूँ. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स यानी प्रोग्राम, कंसर्ट्स का मतलब होता है प्रोग्राम. रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा एवलिन ग्लेनी क्या करते, देखिए. एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स में देखिए ना, कई सारी थेरेपीज होती है. डॉक्टर्स बताते हैं कि म्यूजिक जो है हमारे मन के बुरे विचारों को दूर करके जो है, हमारे मन के निगेटिव विचारों को दूर करके जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे अंदर लाता है. तो वो प्रिजन समझते ना, जेल, प्रिजन में कैदियों के सामने, ऑफिशियल स्टाफ्स के सामने जो है वो परफॉर्म करती है फ्री ऑफ कॉस्ट. समझ रहे हैं ना. एंड फ्री कंसर्ट्स, एवलिन गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, है ना. तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको एवलिन ग्लेनी को जो है वो डेफ है, इसलिए आपकी और हमारी सहानुभूति की कोई ज़रूरत नहीं है. सी इज डबली टैलेंटेड, ओके, देन यू एंड मी एंड सो मेनी अदर. एंड सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. और इतना ही नहीं, वो क्लासेस भी लेती है, छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस वो लेती है, यंग म्यूजिशियंस की, उनको म्यूजिक वो सिखाती है. देखिए, डेफ बच्चों को नहीं, समझ रहे ना, नॉर्मल बच्चों को वो क्लासेस लेती है उनकी. एनी रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रेन सेज सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रेन. एनी रिचलिन का कहना है बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रेन, ये संस्था को ये चलाती है, वहाँ की वो मैनेजर है, वो बोलती है कि सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रेन. डेफ बच्चों के लिए वो क्या है, एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है. दे सी दैट देर इज नो वेयर दैट दे कैनॉट गो. वो देखते हैं एवलिन ग्लेनी को, जब वो परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जब उनको बताया जाता है कि सी कैनॉट हियर, तो बच्चे एकदम से जो है, एकदम से प्रोत्साहन उनको मिलता है
और वो जाहिर सी बात है किसी को भी ये आपके हमारे जैसों को प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी उससे। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल टॉइस हर एज। एवलिन ग्लेनी ने इतनी शोहरत कमाई है, इतना पैसा कमाया है, इतनी इज्जत कमाई है अपने जीवन में कि उसके एज के डबल एज के लोग भी जो है ना, पीपल ट्वाइस हर एज का मतलब होता है उसके डबल एज के लोग जो है वो भी इतनी इज्जत और शोहरत अपने जीवन में नहीं कमाते हैं। सी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। और अगर ऑर्केस्ट्रल वर्क के उसके कंट्रीब्यूशन की बात हम करेंगे, म्यूजिक में उनके उसके कंट्रीब्यूशन की बात हम करेंगे, तो वो ये है कि परक्यूशन को जो पहले कभी भी जो है एक ऑर्केस्ट्रा में फ्रंट व्यू नहीं संभालता था कभी भी, है ना, आपने देखे होंगे ना पुराने ज़माने में तबला लेके कोई जो है पीछे बैठा है, तबला बजा रहा है, ड्रम लेके पीछे बैठा है। तो ऐसा नहीं है, जब भी एवलिन ग्लेनी परफॉर्म करती है तो ड्रम को जो है सबसे सामने लाया जाता है। तो उसने परक्यूशन को जो है फ्रंट में लाने का कार्य किया है एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि डेमॉन्स्ट्रेट करके बताया कि इट कैन बी वेरी मूविंग। मूविंग मतलब समझते हैं ना, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह भी हिला सकते, ले जा सकते। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। जाहिर सी बात है, जो हैंडीकैप्ड है उसके लिए तो इंस्पिरेशन ही, एक प्रेरणा का स्रोत है, इंस्पिरेशन है। पीपल हु लुक एट हर एंड से, लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ सी कैन डू इट आई ऑल्सो कैन। हैंडीकैप्ड बच्चे उसकी तरफ देखते और बोलते हैं कि ये अगर कर सकती है तो हम भी इस चीज़ को कर पाएंगे। बाकी लोग बोलते हैं कि एक डेफ बच्ची इतने अच्छे से अपनी चीज़ों को जो है म्यूज़िक को परफॉर्म कर पा रही है, तो वी ऑल्सो कैन। इफ सी कैन डू इट आई कैन, एंड नॉट द लीस्ट सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। तो इसी तरीके से एवलिन ग्लेनी लोगों को न सिर्फ इंस्पायर करती है बल्कि अपने प्रदर्शन से, अपने मास्टरी से, अपनी परक्यूशन के मास्टरी से एक आर्टिस्ट के तौर पर जो है वो मिलियंस ऑफ लोगों को जो है प्लेजर देने का कार्य करती है अपने म्यूजिक के द्वारा। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन एंड दीज आर सम यू सी word meanings: resonances, workaholic, enormous, you see, accomplished, achieved. Okay, and this is one more picture of Evelyn Glennie. This is the explanation, and this is how Evelyn Glennie is performing in a concert. These are some more pictures of Evelyn Glennie. There are so many pictures, but we have to complete our lesson in two limited slides, so that's why. So the credit for bringing percussion to the front of the orchestra goes to Evelyn Glennie, and no doubt she has given pleasure and joy to millions through her performances. So thank you very much. This is the lesson by me, Milind Jamnekar, PGT English. So after this lesson we will have one more maestro, a Shehnai maestro, that is Bismillah Khan, and we will study about him in tomorrow's lecture. So thank you very much.